बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. In the previous lecture, we were discussing about the thoracic wall, and we have been discussing about the superficial structures of this thoracic wall. That is we have defined the thoracic wall, we have defined the thoracic cavity, we have defined the pleural cavity, and we have seen the superficial innervation, superficial arteries and veins of the thoracic cage. And the last slide which you have seen is that the functions of the thoracic cage, that it protects the thoracic and abdominal organs. And during my discussion, I have shown you the diaphragm and shown you how it protects the thoracic wall, protects the abdominal organs. The other functions of the negative subatmospheric pressure between the pleural cavity, which prevents the deflation or recoil of the lungs and keep the lungs open, and that's the attachment of the upper limb and also the movement of the upper limb. Now today we are going to discuss about the bony cage, that is the bones of the thorax. The very first thing that you feel over your chest are the ribs. सबसे पहले हम रिब्स को फील करते हैं, जो कि आपको फील होती हैं अपने. अब इसमें ये पहली स्लाइड शो कर रही है कि रिब्स जो हैं ये टोटल तो होती है 12, जो हमने देखा है. अगर पिछली स्लाइड में यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, 12 रिब्स. अब ये रिब्स जो हैं ये रिब्स यहाँ पे दिखाई गए हैं, फर्स्ट सेकंड, और ये टिपिकल रिब्स है, और ये 11th और 12th. इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये रिब्स जो है ना बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं. कुछ तो होती है एटिपिकल, ये एटिपिकल रिब्स है. इसमें 2 टाइप्स की हैं, एटिपिकल, और कुछ हैं जो टिपिकल है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड एटिपिकल. फिर ये जो है 11th and 12th, these are atypical. 10th को भी atypical ribs में गिना जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि from 3rd to 9th ribs they are typical ribs, और जो first and second ये atypical ribs होंगी, और फिर जो है ना ये 11th and 12th ये भी atypical ribs होंगी. तो यहाँ पे ये है कि कुछ रिब्स ट्रू रिब्स हैं, पहली से लेकर जो है ये 7th रिब तक. दीज आर दी ट्रू रिब्स, क्योंकि ये सारी की सारी स्टर्नम के साथ अटैच होती है. एक और ये क्लासिफिकेशन है. अच्छा, दूसरी फॉल्स रिब्स है कि जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से होती हैं और आगे आपस में जुड़ी होती हैं थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेजेस. So these are the false ribs. These are named as vertebrochondral ribs, 8th, 9th, and usually the 10th rib. Usually the 10th rib. Their cartilages are connected to the cartilages of the rib above, and their connection with the sternum is indirect. That's why they are called as false rib. Floating ribs means they are attached to the vertebral column, but anteriorly they are free. There is no anterior attachment with the sternum by any way, directly or indirectly. So these are named as the floating ribs, 11th and 12th, free ribs. Vertebral free rib means vertebrocostal, vertebrochondral and vertebral free ribs, floating ribs. अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन में रिब्स की ये एक टेबल है जिसमें according to features, according to relationship with the sternum, according to articulation. अगर देखें फीचर्स के लिए आते तो टिपिकल रिब्स हैं 3rd to 9th, atypical 1st, 2nd, 10th and 12th. Normal ribs have the same general features, और on the other hand atypical में special features होंगी that will differentiate them from the typical rib. According to the relation with the sternum, कुछ ट्रू रिब्स जो हमने पीछे देखे, कुछ फॉल्स रिब्स हैं और कुछ फ्लोटिंग रिब्स हैं. इसमें उसने लोअर 5 रिब्स को लिखा हुआ है,
कि ये वो फॉल्स रिब्स हैं, बट वो यहाँ पे पिछली डायग्राम में हमने देखा कि वो जो 11th एंड 12th हैं, देयर आर दी फ्लोटिंग रिब्स। आर्टिकुलेशन के लिहाज से वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये पिछली डायग्राम में हम देख चुके हैं। तो वर्टिब्रो स्टर्नल 1st to 7th, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल 8th to 10th, वर्टिब्रो फ्लोटिंग रिब्स 11 and 12। अच्छा जी, अब ये उनकी रिब्स की थोड़ी थोड़ी दिखाई गई हैं। ये है एटिपिकल रिब यानी सेकंड, ये फ्लोटिंग रिब्स। ये सी में जो दिखाई गई दिस इज अ टिपिकल रिब, टिपिकल रिब। ये बाकी जो दिखाई गई हैं, ये फर्स्ट है, ये 12th है और ये सेकंड रिब है, ये रिब्स हैं एटिपिकल रिब्स। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कि टिपिकल रिब पहले हम देखते हैं कि क्या होती है। हर टिपिकल के 3 पार्ट्स होंगे, एक हेड होगा, एक नेक होगी और फिर एक इसका ये शैफ्ट होगा। एंटीरियर एंड जो स्टर्नम के साथ है और पोस्टीरियर एंड जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ। एंटीरियर एंड में ये कप शेप यहाँ पे होगा जो कि जॉइंट बनाएगी कार्टिलेज के साथ, तो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कनकेव डिप्रेशन, ठीक है ना। और पोस्टीरियर ये फिर इसकी ये है ना पोस्टीरियर एंड होगा जिसमें हेड, नेक और टुबरकल आएगा, फिर आ जाता है शैफ्ट ऑफ द बॉडी। ये टिपिकल रिब्स के 3 पार्ट होंगे। अब उसका हेड अगर देखें टिपिकल रिब का, तो इसके ऊपर एक सुपीरियर डेमी फेसेट है, एक इंफीरियर डेमी फेसेट है, अपर एंड लोअर डेमी फेसेट, और उनके दरमियान एक क्रेस्ट है। अब ये हेड जो है ना ये वेस्ट शेप हो गया और इसमें 2 आर्टिकुलर फेसेट्स हैं और ये लोअर एंड अपर होंगे, और ये लोअर बिगर फेसेट आर विद द बॉडी ऑफ द न्यूमेरिकली कोरस्पॉन्डिंग रिब। लोअर वाला ये बिगर है, ये अपनी रिब के साथ अपना वर्टिब्रा जो है इसका, मतलब अगर ये थर्ड है तो इसका ये जो फेसेट है लोअर वाला, ये अपनी रिब के साथ आर्टिकुलेट करेगा थर्ड के साथ, और ऊपर वाला जो है वो आर्टिकुलेट करेगा अपने से ऊपर वाले वर्टिब्रे पे, यानी सेकंड के साथ। अगर हम इसको थर्ड गिने तो ये वाला करेगा थर्ड के साथ जो लोअर है और लार्जर भी है, और जो अपर स्मॉलर है ये करेगा सेकंड वर्टिब्रा के साथ। और क्रेस्ट जो है इन दोनों को ये सेपरेट कर रही है, जो कि वर्टिब्रल जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो क्या कहते हैं उसके साथ वो अपोजिट उसके होगा। और हेड जो है ये कनेक्टेड होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर से थ्रू ट्राई रेडिएट लिगामेंट, वो आगे हम देखते हैं। सो फिर आ जाती है नेक वो बड़ा छोटा सा एरिया है, उस पर कोई बोनी प्रोमिनेंस नहीं होगी, वो सिंपली हेड को कनेक्ट करती है इसके साथ बॉडी के साथ, ठीक है ना। और ये इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, और इसके 2 बॉर्डर होंगे सुपीरियर इंफीरियर, सर्फेसिस भी तो होंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो अपर बॉर्डर है क्रेस्ट शेप है और लोअर बॉर्डर जो है इज राउंडेड वन। इसका ये अगर देखें तो अपर बॉर्डर क्रेस्ट शेप, लोअर बॉर्डर है इसका, ये नेक रीजन दिखाया गया। पोस्टीरियर सरफेस जो है इसकी वो रफ होगी एंड वो फोरामिना उसमें होगा। टुबरकल ये लैटरली है, ये टुबरकल दिखाया गया है। अब इसमें है कि ये पोस्ट्रो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिब इन जंक्शन विद द नेक एंड शैफ्ट, उसके साथ ही शैफ्ट और नेक के साथ ही ये प्रेजेंट है। इसके 2 पार्ट होंगे, एक मीडियल आर्टिकुलर पार्ट और लैटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे ये आर्टिकुलर पार्ट है मीडियल और ये लैटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, और ये जॉइंट बनाता है इसके साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। तो जो आर्टिकुलर प्रोसेस है वो ओवल होगा, आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो फिर ये क्या कहते हैं लिगामेंट्स को अटैचमेंट देगा।
tubercle of each of upper 7 is olive shaped, और जो tubercle of each of 3 ribs 8, 9 and 10th is flat. और फिर ये कि टू स्लाइड फॉर द स्लाइडिंग मूवमेंट, फ्लोटिंग रिब्स में कोई टुबरकल नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना कि उनमें कोई, क्योंकि वो इतना पार्ट नहीं टेक करते तो इस रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इसलिए उनमें टुबरकल नहीं होता। यहाँ पे आप इसको डिटेल के साथ देखते हैं तो ये आप देखें, ये इसका हेड है, ये इसका अपर स्मॉलर फेसेट, लोअर ये उसका वो फेसेट है, क्या कहते हैं। जब हम आगे जॉइंट्स में देखेंगे तो हमें फिर वो भी समझ आ जाएगा। तो ये इंफीरियर फेसेट बड़ा है, अपर फेसेट छोटा है, ये अपनी वर्टिब्रा के साथ होगा। मसलन ये 6th रिब है उसने कहा, ये वाली, तो ये वाला फेसेट जो है ये 6th थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और ये वाला फेसेट जो है ये आर्टिकुलेट करेगा 5th उसके साथ। इस तरह अगर ये 8th है रिब है तो इसका लोअर फेसेट है ये 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ करेगा, और ये अपर वाला जो है ये 7th के साथ करेगा वर्टिब्रा के साथ, ठीक है ना। तो ये हमें वो नजर है हेड का, और बीच में ये देखें ये क्रेस्ट है जो कि डिस्क के अपोजिट होगा, और यहाँ पे टुबरकल दिखाया गया, ये इसका मीडियल, ये इसका लैटरल पार्ट है। मीडियल पार्ट आर्टिकुलर है और ये नॉन आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर पार्ट जो है आप ये करेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाएगा। नॉन आर्टिकुलर पार्ट पे क्या लिगामेंट अटैच होंगे, और ये अगर ये कहाँ होगा, ये लोअर जो रिब है यानी 8th है, ये वाली 8th है, इसका टुबरकल जो है ना फ्लैट होगा, इसका जो है ना ओवल शेप होगा, वो मतलब ये उभरा हुआ होगा। इसका क्यों फ्लैट होगा, क्योंकि मूवमेंट डिफरेंट होनी है। यहाँ पे अपर वाली रिब्स में तो डिफरेंट मूवमेंट होती है और इसमें डिफरेंट मूवमेंट होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके टुबरकल्स भी डिफरेंट रखे हुए हैं। इसके बाद फिर देखें ये शैफ्ट यूरेथर, शैफ्ट में जहाँ पे ये टर्न करती है इंटीरियरली, वहाँ पे एक एंगल बन जाता है जिसको कॉस्टल एंगल करते हैं, और उसके आगे इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। अब बॉडी में देखें तो फ्लैट है, इसका ये अपर वाला बॉर्डर है, ये लोअर वाला बॉर्डर है, और इसकी ये एक्सटर्नल सरफेस हो जाएगी, ये इंटरनल सरफेस हो जाएगी, यानी 2 बॉर्डर्स हो जाएंगे, 2 सरफेसेस हो जाएंगी, ठीक है ना। जो शेफ्ट है उसकी बॉडी की वो 2, और यहाँ पे इसका जो लोअर बॉर्डर है उसके साथ ये कॉस्टल ग्रूव भी दिखाया गया, ये कॉस्टल ग्रूव। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं तो फिर यहाँ पे बॉडी के जो हमने देखा, जैसे हमने इस स्लाइड में देखा, इसके ये हमने सरफेस और बॉर्डर देख लिए, तो यहाँ पे भी इसका एक आउटर सरफेस, इनर सरफेस, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, और 2 एंगल होंगे इंटीरियर पोस्टीरियर, यानी जहाँ पे ये टर्न कर रही है इंटीरियर, कर्व्ड है ना, तो ये यहाँ पे कॉस्टल एंगल ये हो गया, ये पोस्टीरियर एंगल हो जाएगा, और इधर इंटीरियर एंगल होगा जो कि जहाँ पे ये कर्व करती है फॉरवर्ड टू रीच टू द स्टर्नम, तो वो स्टर्नल एंगल बन जाएगा, वो कॉस्टल एंगल्स कहलाएंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वैसे कोई एक ही गिनते हैं कई, यानी पोस्टीरियर एंगल, एंगल ऑफ द रिब्स एक ही होता है। आउटर सरफेस स्मूथ है, आप फील भी कर सकते हैं। वो 2 एंगल्स होते हैं पोस्टीरियर इंटीरियर। पोस्टीरियर एंगल जो है वो रेफर टू द ओनली टू एज ओनली एंगल मार्क्ड बाय द ऑब्लिक, व्हिच इंटीरियर एंगल इज मार्क्ड बाय द इन दिस ऑब्लिक लाइन। तो ये टिपिकली रेफर टू एज ओनली एंगल। तो आप भी यही याद रखें, पोस्टीरियर एंगल ही, अगर कोई ज़्यादा पूछता है तो हम बता सकते हैं कि इंटीरियर एंगल भी होता है, लेकिन मेनली पोस्टीरियर एंगल ही कॉस्टल एंगल यानी रिब का एंगल गिना जाता है। और वो हमने इस डायग्राम में देखा कि ये कॉस्टल एंगल है, पोस्टीरियर एंटीरियरली एक लाइन सी होती है जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये असल में इसको कहते हैं कॉस्टल एंगल, यहाँ पे रिब टर्न करती है, ठीक है ना जी। इनर सरफेस में ये है ना, ये स्मूथ कनकेव है, और कॉस्टल ग्रूव इसके लोअर बॉर्डर पे होगी, ये हमें नजर आ रही है, ये कॉस्टल ग्रूव है, और इसके अंदर ये न्यूरोवास्कुलर बंडल आ रहा है,
और ये देखें, ये इंटरकॉस्टल मसल्स को अटैचमेंट हो रही है। यहाँ पे 3 किस्म के इंटरकॉस्टल मसल्स को अटैचमेंट दे रही है बॉडी। बॉर्डर्स में एक इसका अपर बॉर्डर ये रिब का और एक इसका ये लोअर बॉर्डर। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके दरमियान इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट ये अटैचमेंट दे रहा है ये बॉर्डर्स, है ना, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। फिर ये हमने टिपिकल रिब देखी है जिसमें ये हेड है, जिसको हमने देखा कि ये पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ। ये इसका लोअर फेसेट है, लोअर डेमी फेसेट है जो बड़ा होता है, जो अपने वर्टिब्रा के साथ करते हैं। टिपिकल रिब्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसका अपर स्मॉलर फेसेट आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा अबव। फिर इसकी नेक है, इसके 2 बॉर्डर्स हैं, 2 सरफेसेस हैं। फिर इसके टुबरकल के मीडियल लैटरल टुबरकल, और फिर यहाँ पे ये एंगल आ जाता है रिब का जहाँ से टर्न करता है। फिर शेफ्ट आ जाती है, और यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर पे शेफ्ट की ये कॉस्टल ग्रूव है जिसके अंदर न्यूरोवास्कुलर बंडल रन करते हैं। इसके ये अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, इसकी 2 सरफेसेस होंगी जो इनर एंड आउटर सरफेस होंगी। आर्टिकुलेशन एंटीरियरली ये देखें ये कर रहे हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। कौन कौन सी, 1 to 7, पहली तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो 8th 9th और 10th ये आर्टिकुलेट कर रही हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ। 8th 9th ये 8th 9th एंड 10th यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं थ्रू द कार्टिलेजेस, और ये कॉस्टल मार्जिन बनाती हैं। और ये 11th और ये 11th और 12th हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इनकी कोई वो इंटीरियर अटैचमेंट ये वर्टिब्रा के साथ तो है। पोस्टीरियर अटैचमेंट में ये देखें, ये हेड बना रहा है इसके साथ जॉइंट, किसके साथ, वर्टिब्रा के साथ। अब अगर ये वाली रिब ये 6th है तो ये वाला जो वर्टिब्रा ये 6th होगा और ये वाला वर्टिब्रा 5th होगा। यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, जिसके अपोजिट इसका ये हो जाता है। अब यहाँ पे कॉस्टो ट्रांसफर जॉइंट ये बन रहा है बिटवीन द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द सेम वर्टिब्रा। तो टुबरकल ये जॉइंट बना रहा है, और ये जॉइंट बन रहा है कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है ना, बिटवीन द हेड एंड द बॉडीज ऑफ द ये थोरैसिक वर्टिब्रा। और ये जॉइंट बन रहा है बिटवीन द टुबरकल एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सेम वर्टिब्रा। अब साइड कैसे करेंगे इसकी, तो रिब का देखें ना, हमने यहाँ देखा कि हेड जो है वो पोस्टीरियरली है। पोस्टीरियर जो है उसके हेड नेक टुबरकल है जो कि आर्टिकुलेट कर रहा है वर्टिब्रा के साथ, ठीक है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन में पोस्टीरियर एंड जो है वो हायर एंड नियर द मीडियल प्लेन होगा इन रिलेशन टू द एंटीरियर एंड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कर्व्स अलोंग इट्स होल एक्सटेंड, angulate, present 2 curves 15 centimeter in front and 12 centimeter behind the anterior end। 15 सेंटीमीटर जो है टुबरकल से आगे कर्व है और 12 सेंटीमीटर बिहाइंड दी एंटीरियर एंड एक कर्व है। तो ये 2 कर्व होते हैं। ये सेंटीमीटर्स भी आप याद रख सकें तो ठीक है। और ये ट्विस्टेड होगी, बोथ एंड्स आर कैन नॉट कॉन्टैक्ट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, कर्व एंगल ट्विस्टेड। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। साइड में आपने देख लिया, जब हम जाएंगे तो ये यानी कि अब ये वाली रिब्स जो हैं हम इनको राइट साइड की रिब्स कह सकते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियरली है, ये इंटीरियर एंड है इसका, ये इसका हेड है जो कि वर्टिब्रा के साथ होगा, ये इसके एंगल है। और फिर ये दोनों रिब्स 6th भी और 8th भी ये राइट साइड की रिब्स हैं, ठीक है ना। अगर ये कर्व लेफ्ट साइड पे होती तो हम कहते ये लेफ्ट साइड की रिब है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द रिब्स आ गई। अब आगे जनाब एटिपिकल रिब 1, 10, 11, 12 ये एटिपिकल रिब्स होंगी।
अब हमने देखना है कि रिप वन की क्या है खसूसियात, रिप टू की क्या खसूसियात है, रिप 10 में और रिप 12 में क्या क्या ये हैं जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं कि एटिपिकल रिप्स क्या है। तो फर्स्ट रिप्स है एटिपिकल रिप्स, ये लेफ्ट वाली फर्स्ट एंड सेकंड रिप्स दिखाई हुई है। तो ये पोस्टीरियर से भी हुई है। अब ये वाली राइट होगी, इस साइड पे राइट है, ये लेफ्ट है। ये फर्स्ट रिप है, इसका हेड है, ये नेक है, ये टुबरकल है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है ना, और इसमें ये सर्टन मार्क्स है। सबसे ऊपर है, सबसे छोटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, फ्लैट है, मोस्ट कर्व्ड है, इसका एंगल नैरो होगा, मोस्ट फिक्स्ड है क्योंकि एंटीरियरली इसका जॉइंट जो बनता है वो फिक्स होता है, एंड ब्रॉडेस्ट है और सबसे चौड़ी रिप यही है। हर जो फर्स्ट रिप है उसका जो शेफ्ट है ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, क्योंकि ये थोरेसिक इनलेट जो है उसको बॉर्डर करती है, तो ये क्या करती है, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड टर्न करेगी। इसका जो हेड है ये अपने T1 वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है सिंगल फेसेट के साथ, एक ही फेसेट, ठीक है ना, और वो अपने से ऊपर C7 के साथ इसका कोई जॉइंट नहीं बनता। अपर इसकी एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अब उन दोनों की अपनी अपनी खसूसियत है, और इसमें क्योंकि ये फ्लैट है पड़ी, तो इसमें कॉस्टल ग्रूव नहीं हो सकता। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स का रिलेशन दिखाया गया फर्स्ट रिप पे, ये इसका हेड है, ये नेक है, ये एंगल है, ये इसका टुबरकल है, और ये देखें फ्लैट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर से गुजरते हैं, ये देखें पोस्टीरियरली एंटीरियर टू द हेड एंड नेक, यहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल पड़ा है, और फिर हम इसकी ये एंटीरियरली आते जाएं तो ये इसके शेफ्ट में देखें, यहाँ से ये नर्व गुजर रही है, कौन सी, इंटरकॉस्टल नर्व, फर्स्ट इंटरकॉस्टल नर्व, और ये T1 जो है, और यही T1 जो है ये आपको पता है कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेती है। ये अगर आप देखें तो ये सुपरफिशियल यानी एंटीरियर मोर एंट्रो मीडियल है, ये पोस्ट्रो लेटरली कह लें, तो ये पड़ी आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, और ये सबक्लेवियन वेन, यहाँ पे अपनी ग्रूव छोड़ेंगी। इसकी ये अपर सरफेस में देखें तो यहाँ पे ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये जो है स्कैलेंडस मीडियस और ये मसल की अटैचमेंट दिखाई गई है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ ये सेरेटस एंटीरियर दिखाई। अब यहाँ पे देखें तो ये अब ये कौन सी साइड की रिप होगी, ये होगी लेफ्ट साइड की, ओके, ये हेड पोस्टीरियरली जा रहा है, ये एंटीरियरली होगा, ये कर्व्ड होगा, तो इसके ये यहाँ पे कह लें पोस्ट्रोमीडियली कह लें स्कैलेनस मीडियस है, ये स्कैलेनस बर्कर्स, स्कैलेनस इंटीरियर मसल है, ग्रूव फॉर सबक्लेवियन वेन, ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, और ये फर्स्ट डिजिटेशन ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रेटस इंटीरियर। तो एक इसका इनर बॉर्डर होगा, एक इसका आउटर बॉर्डर होगा। इनर बॉर्डर पे यहाँ पे होगी सुप्रापिलर मेम्ब्रेन फेशिया, सिम्पसन फेशिया, वो आगे आप पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये सेरेटस इंटीरियर की जो हमने देखा है वो पिछली डायग्राम में देखा है, उसकी ओरिजिन यहाँ से होती है फर्स्ट डिजिट। एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। सो लोअर सरफेस पे तो वो प्लेन होगी, उसमें सिर्फ कॉस्टल टू भाग है। जो अपर सरफेस है उसको हमने देखा है कि रिलेशंस क्या क्या हैं इस डायग्राम में, कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर देखिए ना। अंडर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब इज स्मूथर when the rib is laid on the flat, the head touches the flat surface when the rib is correct way up। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो कि इसकी अपर सरफेस में है। इसकी नेक जो है वो लंबी होगी, पॉइंट करेगी अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड लैटरली, और जब ये आप रिब हाथ में पकड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी
सिंपैथेटिक चेन हमने पिछली डायग्राम में देखी है। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये सिंपैथेटिक चेन का पड़ा हुआ है, ये वाली ये सिंपैथेटिक चेन पड़ी हुई है, ठीक है जी। और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन होगी, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी होगी, फिर वेंट्रल रेक्टस आ जाएगा। तो मेमोरी ऑपरेटिव जो है चेन पुलिंग द वैन, चेन पुलिंग द वैन। अच्छा, साइड डिसीजन जो है वो आपने देख लिया कि पीछे पोस्टीरियर हेड होगा, इंटीरियर इसकी कॉस्टल एंड होगा जो कि जॉइंट बना रहा है कॉस्टल कॉन्ट्रा जॉइंट, और फिर वो स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रहा है। और इसकी अपर सरफेस में दो ग्रूव होंगे, लोअर सरफेस इसकी स्मूथ होगी। ये फर्दर डायग्राम दिखाई गई है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दिखाई गई है, क्योंकि दोनों एटिपिकल हैं तो दोनों के ऊपर ये दिखाया गया। ये देखें, ये सोलेटस इंटीरियर की डिजिटेशन दिखाई गई हैं। ओरिजिन इसका ये है इंसर्शन फॉर स्कैलेनस पोस्टीरियर, तो इंटीरियर और मीडियस है ये तो ऊपर ही अटैच हो गए थे फर्स्ट रिब पर। यहाँ पे ये देखें एंगल ऑफ ये इसका रिब का एंगल दिखाया गया सेकंड रिब का, और ये एंगल होगा इधर फर्स्ट पे। ये नेक कितनी लंबी है इसकी, और इसकी भी नेक लंबी है। ये ट्यूबरकल्स एंड फॉर द जॉइंट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस। सेकंड रिब देखें तो सेकंड रिब जो है ये थिनर है भी और उससे बड़ी है, फर्स्ट रिब से बड़ी लॉन्गर है, ठीक है ना। और ये दो आर्टिकुलर फेसेट इसमें होंगे, जो कि एक हेड का है और इसके फिर इसका अपर जो है वो रफंड होगा सेरेटस इंटीरियर के साथ। लोअर वन जो है वो तो स्मूथ ही होगा, वहां पे क्या कहते हैं प्लूरा ही अटैच होगा। शार्पली बेंट होती है, ट्विस्ट नहीं होती। यहाँ पे ये बेंट है शार्प, लेकिन ट्विस्ट नहीं है, ठीक है ना जी। नियर इट्स मिडल द आउटर कन्वेक्स सरफेस ऑफ द शार्प प्रेजेंट अ रफ इंप्रेशन और tubercle which gives connection with serratus anterior muscle. ये serratus anterior muscle की attachment, first and whole of the second digit. फर्स्ट की अटैचमेंट फर्स्ट रिब के साथ भी होती है और सेकंड के साथ भी होती है, लेकिन सेकंड डिजिटेशन जो है उसकी पूरी की पूरी सेकंड के साथ अटैच होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल सर्फेस प्रेजेंट अ शॉर्ट कॉस्टल ग्रूव, जो कि वो न्यूरोवास्कुलर बंडल के लिए पोरली डेवलप होती है, और ये स्कैलेनस पोस्टीरियर मसल भी अटैच होता है। तो ये अगर हम इसकी फीचर देखें तो यहाँ पे देखें ये स्कैलेनस पोस्टीरियर मसल का ये डिजिटेशन से अटैचमेंट है फर्स्ट की, और यहाँ पे पूरी की पूरी सेकंड डिजिटेशन इसको रिजनरेट कर रही है। जो लोअर सरफेस होगी इसकी वो भी स्मूथ ही होगी, ठीक है ना। ये जो KLM में दी हुई है इसके बारे में छोटा सा उसने ये मैंने दिखाया है, ये भी आप देख लें KLM में क्या लिखा हुआ है और कौन कौन सी डायग्राम उसने दी है। अगर हम इससे नीचे जाए तो ये अब 10th रिब आ गई। 10th रिब की बाकी तो सब उसी तरह टिपिकल रिब्स की तरह होता है, लेकिन इसका सिंगल फेसेट होता है यहाँ पे अमूमन ओन वर्टिब्रा के साथ, ठीक है ना जी। 10th रिब बाकी तकरीबन वही टिपिकल रिब्स की तरह की होती है इसकी सारी प्रॉपर्टीज। अब 11th रिब क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब है, बाकी तो अपनी जगह पे ठीक है कि ये सिंगल लार्ज आर्टिकुलर फेसेट होगा हेड पे, जो कि जॉइंट बनाएगा किसके साथ, वर्टिब्रा के साथ, अपने ही वर्टिब्रा के साथ, 11th वर्टिब्रा के साथ। और इसका इंटीरियर एंड पॉइंटेड है और टिप्ड कार्टिलेज है क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब है। इसका एंगल भी छोटा होगा, एंगल होगा या बहुत शैलो एंगल होगा, और इसकी जो ग्रूव होगी वो भी शैलो होगी। जिस तरह की ग्रूव बाकियों पे थी उस तरह की ग्रूव 11th रिब पे नहीं होगी। इनर सरफेस वो जो है ना इसकी पॉइंटेड अपवर्ड एंड इनवर्ड्स, तो ये 11th रिब है। इसको हम उस पर भी कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया ये 11th रिब है, ये इसका इंटीरियर एंड है, ये अपने वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ये सिंगल जॉइंट बनाती है, ठीक है।
ये 10th रिप का भी है, ये देखें ये 10th रिप है, ये 11 12 ये 10th रिप है, इसका भी सिंगल आर्टिकुलर फेसेट होता है। ये वीक एरिया में दी हुई है कि 10th 12th लाइक द फर्स्ट हैज ओनली वन facet on their heads and articulate with the single vertebra. 11th rib and 12th ribs are short and have no neck or tubercle. उनका ना नेक होती है ना tubercle होता है 11th और 12th में। अब ये 12th रिब है, इसकी डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए 12th रिब कि ये जो है ना फिर मसल्स को और मुख्तलिफ जो अब्डोमिनल के हैं उनको, पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के, उनको अच्छे अटैचमेंट देती है, दैट्स व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन। तो इसमें देखें ये 12th रिब है, identical features on the 11th with the exception of that no neck, no angle, no tubercle, no costal। 12th में ना नेक होती है इसकी, ना एंगल होता है, ना टुबरकल होता है, ना कॉस्टल। शॉर्टर है 11th से एंड एज शॉर्ट एज द फर्स्ट रिब। साइड फिर कैसे पता चलेगी? बाय कीपिंग द रिब्स इन स्टाइल दैट it points anterior and directed anterolaterally, wider and posteromedially. Concave surface faces inward और इसकी जो अपवर्ड है शार्प बॉर्डर इज डायरेक्टेड इंफीरियरली। ये इसकी फीचर्स है कि जिससे हम 12th रिब को लोकेट कर सकते हैं। अटैचमेंट्स, ये अटैचमेंट्स हैं इसकी कि ये देखें ये 12th रिब है तो यहाँ पे ये इंटरनल इंटरकोस्टल ये अटैच हो रहा है, लेकिन इंफीरियर बॉर्डर पे ये क्वाड्रेटस लंबोरम अटैच हो रहा है, और लेटरली जाएं तो ये डायफ्राम की अटैचमेंट है। और इस सरफेस पे देखें बिलो तो फिर उल्टा के देखें तो ये लॉन्गिस्मस कोलाई है, इलियोकोस्टालिस है, लेटिस्मस डॉर्सी है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, और ये क्या कहते हैं ये अटैचमेंट इसकी मिडल लेयर ऑफ द थ्रेकोलम्बर फेशिया है। यहाँ पे कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, लंबो कॉस्टल लिगामेंट, ये अटैचमेंट है 12th रिब की, ठीक है ना। तो इसको कंफर्म फिर आप इसका देखिए आउटर सरफेस और इनर सरफेस, इसकी इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, इनर बॉर्डर पे और लोअर बॉर्डर पे, अपर बॉर्डर पे और लोअर बॉर्डर पे अटैचमेंट इसकी सारी बताई गई है। इसको कंफर्म आप इधर से क्रॉस कर सकते हैं। अब आगे कॉस्टल कार्टिलेजेस, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, कंट्रीब्यूट टू द इलास्टिसिटी ऑफ thoracic wall, फ्लेक्सिबल अटैचमेंट होती है इनकी। Cartilages increase in length through the 1st to 7th, then gradually decreases। 1 से 7 से तो बढ़ती हैं, लेकिन 7 के बाद फिर ये छोटी होनी शुरू होती हैं। जो पहली कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं इंडिपेंडेंटली विद द स्टर्नम 7th तक, लेकिन 8th 9th एंड 10th जो हैं ये विद द कॉस्टल कार्टिलेजेस just superior to them, forming a continuous articulated cartilaginous costal margin। यहाँ पे देखें तो आपको ये नजर आ जाता है, ये कंटिन्यूस कॉस्टल मार्जिन है और ये सारी इंडिपेंडेंट अटैचमेंट, और ये देखें बढ़ रही है साइज में एज कम बिलो, ठीक है ना। फिर और जो 11th और 12th है इनकी कॉस्टल कार्टिलेज फॉर्म कैप्स ही बनाती हैं, अदरवाइज वो आगे नहीं जाती, ठीक है ना। और जो 1 to 10th है क्लियरली एंकर द इंटीरियर एंड ऑफ द रिब टू द स्टर्नम लिमिटिंग द ओवरऑल मूवमेंट, यानी कि ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली ये स्टर्नम के साथ अटैच है, लेकिन ये वाली रिब्स 11th एंड 12th दे आर नॉट अटैच विद स्टर्नम। तो ये कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं। इनका ये जो जॉइंट है हम देखेंगे कि जॉइंट किस टाइप के थे, ये जॉइंट किस टाइप के थे, ये जस्ट आपको कॉस्टल का इंट्रोडक्शन है। कॉस्टल मार्जिन वही आपको बताया कि ये जब 8th 9th 10th 7th भी साथ में, तो ये जब फ्यूज करते हैं तो ये बनाती हैं कॉस्टल मार्जिन। और ये देखें कॉस्टल मार्जिन रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली, डाउनवर्ड्स एंड लेटरली रन कर रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पे ये फिर ये ऑब्लिक मार्जिन बनाता है जिसको कॉस्टल मार्जिन कहते हैं, और यहाँ पे ये एंगल बनेगा दोनों तरफ। ये देखिए ये वो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे ये एंगल बन रहा है एट द बोथ कॉस्टल मार्जिन, ठीक है ना। ये कॉस्टल मार्जिन दिखाए गए हैं। अब आ जाए थोरेसिक वर्टिब्रा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोरेसिक वर्टिब्रा डिस्कस करेंगे और फिर जॉइंट्स वगैरह, स्टर्नम और जॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू करना है। ये हमने रिब्स को देखा और कॉस्टल मार्जिन देखा। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे।